Hi friends. Now let's see how the materials are classified based on their resistivity. We studied the resistivity in the last lecture. Now based on resistivity, materials can be classified into three parts: conductors, then bad conductors. Conductor means good conductors, then bad conductors, and between them comes semiconductors. Now conductors have the resistivity value very low, around 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 6 ohm into meter. Conductivity in this range 10 raised to minus 6 to minus 8 to 10 raised to minus 6 ohm into meter. While bad conductors have high resistivity, almost 10 raised to 18 times this, yani 10 raised to 8 to 10 raised to 10 ohm into meter. So this is the range of resistivity in conductors and in bad conductors. Resistivity is low, therefore they are good conductors. Resistivity high means they are better resistors than bad conductors. Okay, bad conductors can also be called as good resistors. So resistivity if it is high, then there will be good resistors, that is bad conductors. Resistivity अगर low है, तो they are good conductors, or you can say bad resistors. Semiconductors have the resistivity in between these two, इन दोनों के बीच में कहीं पे have their values. Okay. Secondly, for ideal good conductor यानी जिसका कंडक्शन 100% होता है, तो they have their resistivity 0. An ideal good conductor has resistivity 0. While on the other hand, an ideal bad conductor यानी कि we call this insulator. An ideal insulator has resistivity infinite. Insulator does not allow the current to pass. That means resistance is infinite. So resistivity will be infinite. So two ends: ideal good conductor, ideal bad conductor. यानी ideal insulator. Ideal good conductor का 0, ideal insulator का infinity. Resistivity increases as the conduction property decreases. Ideal good conductor, semiconductor, bad conductor, ideal bad conductor यानी कि insulator. Okay. So this is the classification of materials on basis of resistivity. Can be asked for 1 mark MCQ or 1 mark short questions. Then we see the types of resistors. Based on their making, resistors can be classified into two types. एक तो आएगा wire wound resistors. Wire wound resistors यानी कि the name itself suggests they are made up of wires. The other one is carbon resistors. Let's see what is wire wound resistor first, and then we'll go over to carbon resistors. Wire wound resistors, as the name itself says, it's made of wire. We know that any metallic wire is either a good conductor or a bad conductor. Same metallic wire is either a good conductor or a bad conductor. Now, if you want a resistor, that means it should be a good resistor, so bad conductor. तो मटेरियल ऐसा लेने का जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो. Now, wire wound resistors में, and normally what we take is, in order to have the reliable resistor, means a value which is not much changing with the temperature, we normally take materials like manganese, then we have nichrome, and a third one commonly used is constant 10. These are the materials used for wire wound resistors. अब wire wound resistor बनाते कैसे है? तो उसके लिए खाली वायर को लेके लेंथ बढ़ा दो, हाई रेजिस्टेंस, लेंथ कम कर दो, लो रेजिस्टेंस. नॉर्मली लेबोरेटरी व्हाट वी हैव इज देयर इज अ वुडन प्लैंक. एक वुडन छोटा सा प्लैंक होता है, उसके ऊपर वायर इज फिटेड लाइक दिस एंड टू एंड्स आर केप्ट. दीस आर द टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर. तो ये हो गया लैब में हम जो यूज करते हैं बहुत सिंपल सा रेजिस्टर. ये वायर का जो भी रेजिस्टेंस आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स काउंटेड. फर्दर इसका वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट. लैब में प्रैक्टिकल्स में आएगा, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ. वैसे नॉर्मली टीचर्स पीछे लिखते ही हैं, अगर चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं आपका जो आंसर सही है कि नहीं. देन सेकेंडली अनदर वायर वाउंड रेजिस्टर इज दिस वे. यू हैव ब्लैक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर 2 टर्मिनल दिए होते हैं, बराबर. इतना छोटा सा बॉक्स होता है, कटोरी जैसा. उसके अंदर कॉइल ऑफ वायर इसमें एक टर्मिनल पे, दूसरे टर्मिनल पे, जो दिखता नहीं हमको. इट्स अ ब्लैक कलर बॉक्स, इट्स यू कैन नॉट सी थ्रू इट, ओपेक होता है. तो ये अंदर वायर का कॉइल रखा होता है, दैट कॉइल हैज ऑफर्स अ रेजिस्टर. ये उसके 2 टर्मिनल हो गए रेजिस्टर के. तीसरा जो रेजिस्टर यूज करते हैं वो, उसमें क्या करते हैं,
एक चाइना क्ले का ऐसा सिलेंडर बनाते हैं। चाइना क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऐसा सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वायर इज बाउंड। जैसे फिरकी पे डोरी लपेटते हैं वैसे ही इस पे वायर वाइंड क्या होता है, उत्तरायण में जो आप फिरकी यूज करते हैं वही। तो ये वायर वाइंड क्या होता है, ये वायर के दो एंड, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। ओके, फिर इसको यूं स्टैंड दिया होता है, इसके ऊपर एक और रॉड बना होता है जो यहाँ अटैच होता है, एंड वन टर्मिनल इज हियर, अनदर टर्मिनल दिस वायर विच इज ओपन, थर्ड टर्मिनल इज दिस वन। नाउ ये 1 2 एंड 3 टर्मिनल्स हो गए। इस तो 3 के ऊपर, 3 का जो रॉड है उसके ऊपर एक और अरेंजमेंट ऐसा रखा था नॉब वाला, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये सिलेंडर है तो उसके ऊपर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए। नाउ सो दिस इज द सिचुएशन। अब ये दो टर्मिनल पे अगर आप वायर लगाते हैं तो इट्स अ फिक्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की फिक्स हो गई। अगर आप इसके बदले यहां लगाते हैं, ये दो फिक्स टर्मिनल्स हैं, ये वेरिएबल टर्मिनल है, यहां अगर आपने वायर लगाया सर्किट का, यानी एक वायर यहाँ पे एक वायर यहाँ पे, तो यहां से करंट आएगा इधर, इधर से नीचे आएगा एंड फिर पासिंग टू दिस मच लेंथ विल कम आउट फ्रॉम हियर, यानी करंट विल बी फेसिंग दिस मच रेजिस्टेंस ओनली। अगर इस नॉब को घुमा के साइड में ले गए, इधर ले आए, तो फिर क्या होगा, करंट यूं आएगा, इधर टच होके थिकनेस होके लेंथ बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो यू कैन वेरी द रेजिस्टेंस बाय मूविंग द वेरिएबल नॉब। वेरिएबल नॉब को मूव करके आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर, दिस इज अ केस ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर। इन दोनों में लेंथ फिक्स है तो रेजिस्टेंस फिक्स, इसमें यू कैन वेरी द रेजिस्टेंस। नॉब को ये एंड से लेके ये एंड तक घुमाते जाओ, यू कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टर्स। नाउ दिस इन लैबोरेटरी दिस डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट, इसको रियोस्टेट बोलते हैं, ये आपको लैब में बहुत कॉमनली दिखेगा। नाउ रियोस्टेट को सिंबॉलिकली कैसे बताएंगे, तो फिक्स रेजिस्टर है तो वी शो इट बाय दिस वे, ये फिक्स रेजिस्टर हो गया, ये दोनों का सिंबल। ये वेरिएबल रियोस्टेट है तो उस वेरिएबल रेजिस्टर के रियोस्टेट के लिए वी शो इट बाय दिस वे, these two are fixed terminals and the variable one, this is how we show it। अगर आप ये दो एंड लगाते हैं तो रेजिस्टेंस फिक्स, और अगर आप ये वेरिएबल टर्मिनल एंड फिक्स टर्मिनल लगाते हैं, ये दोनों लगाते हैं, यानी ये दोनों पे वायर ज्वाइन किया तो इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। यू कैन वेरी बाय चेंजिंग पुशिंग द नॉब हियर एंड देयर। ओके, तो ये हो गया वायर बाउंड रेजिस्टर्स के बारे में। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। नाउ लेट्स गो अहेड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। Carbon resistors, the name itself says carbon is used for resistance purpose. Here what we do is we take a small cylinder, solid cylinder of carbon, then on this carbon cylinder, so in the cylindrical form, on this we coat a resin. Resin is coated. Resin is actually a non-hygroscopic substance, and so what resin does is it does not allow the moisture to interact with the carbon, thus protecting the carbon from moisture and the variation of temperature. फिर two wires are inserted here, thus these form the two terminals of the resistor। ये कार्बन रेजिस्टर तैयार हो गया, यानी कार्बन इज टेकन एंड कार्बन का फॉर्म कौन सा लेते हैं, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म लेते हैं। यहाँ पे ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एंड रेजिन इज कोटेड ऑन इट। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। फिर इसका वैल्यू कैसे पता लगाया जाए, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर का वैल्यू अगर ढूंढना हो तो on this carbon resistor there are 4 bands made, colored bands, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा थोड़ा दूर होता है। 4 color bands are made, first, second, third and fourth is little bit far away, fourth का गैप थोड़ा ज्यादा होता है। this is a first band, second band, third band and fourth band। ये bands क्या सजेस्ट करते हैं, these are 4 color bands, what they suggest, first band gives value at tens place, tens place की वैल्यू देता है। सेकेंड बैंड गिव्स वैल्यू एट यूनिट्स प्लेस। तो बोलोगे टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस क्या होता है, तो याद रखें व्हेन वी राइट अ नंबर, सपोज वी राइट 23, तो इन दिस वी नो दैट 3 इज यूनिट्स प्लेस, 3 यानी यूनिट्स प्लेस है एंड 2 यानी टेंस प्लेस है। ऐसा हम लोग नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीखे तब सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में सीखा था इसको, बराबर है। तो फर्स्ट बैंड गिव्स टेंस प्लेस, सेकंड बैंड गिव्स यूनिट्स प्लेस, यानी दोनों मिला के गिव्स अ 2 डिजिट नंबर।
both together gives 2-digit number. फिर third band gives power of 10. थर्ड बैंड gives power of 10. That is थर्ड बैंड का जो वैल्यू आएगा वो 10⁻x होगा. यहाँ जो भी वैल्यू है थर्ड बैंड का वो वैल्यू 10⁻x देगा. Then fourth band gives tolerance value. Fourth band gives tolerance value. Now ये tolerance क्या होता है? It is always given in plus minus and percentage. प्लस माइनस इतना परसेंटेज. यानी टॉलरेंस क्या बताता है? ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी टू डिजिट नंबर विथ इंटू 10⁻⁴ दिस मच, 2 डिजिट नंबर इंटू 10⁻⁴ दिस मच, ये जो वैल्यू बनी इसमें कितना प्लस माइनस हो सकता है, हाउ मच यू हैव टू टॉलरेट, हाउ मच वेरिएशन यू हैव टू टॉलरेट इन इट, ये वो बताता है. तो टॉलरेंस वैल्यू मीन्स इफ सपोज यू गेट 10,000 रेजिस्टेंस, तो उसमें व्हेन यू आर यूजिंग इट, सॉरी वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड, पहला तो जहाँ पे उसे बनाया गया वहां पे उसका वैल्यू, सेकेंडली लेबोरेटरी में जहां पे उसे चेक किया गया उसका वैल्यू, तीसरा द पोजीशन वेयर यूजर यूजेस इट. ये तीनों के क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो सकती है, तीनों के क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो सकती है. बेस्ड ऑन दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर वैल्यू में चेंज. तो कितना चेंज हो सकता है पॉसिबल, वो यहाँ पे इंडिकेट किया जाए टॉलरेंस में. इट्स ऑलवेज इन प्लस माइनस परसेंटेज फॉर्म. अब इसका यूज करके क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो देखते हैं. यहाँ पे वैल्यू मिलेगा कैसे वो फाइंड करते हैं. चलो उसके लिए टेबल है, कलर कोड, उसके लिए कलर कोड डिफाइन किया हुआ है विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. लेट्स सी द कलर कोड. कलर कोड फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस. कलर कोड में कलर है, देन कलर के साथ लिंक्ड वैल्यू एंड टॉलरेंस वैल्यू एंड टॉलरेंस, ये 3 कॉलम बनते हैं. कलर में चले तो सबसे पहले ब्लैक कलर विच इज गिवन वैल्यू 0, फिर आता है ब्राउन कलर विच इज गिवन वैल्यू 1, ब्राउन के बाद आएगा रेड कलर गिवन वैल्यू 2, फिर ऑरेंज गिवन वैल्यू 3, येलो गिवन वैल्यू 4, देन ग्रीन गिवन वैल्यू 5, देन ब्लू वैल्यू 6, वायलेट वैल्यू 7, वायलेट के बाद आएगा ग्रे वैल्यू 8, देन कम्स वाइट वैल्यू 9. तो तुम बोले कि सर बाद में 10 लेना है, अरे 10 लेना 1 और 0 हो गया ना यार, 10 के लिए कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है. सरदार जी जैसा मत करो सर, 10 मिला ही नहीं अंदर, राइट. सो दैट्स द केस. नाउ हियर वाइट गिव्स 9 वैल्यू. फिर बाद में 2 और कलर डिफाइंड है, गोल्ड और सिल्वर. गोल्ड के लिए सिल्वर के लिए वैल्यू -1 और -2 दिया हुआ है, बराबर है. अब टॉलरेंस वैल्यू देखें तो गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10%, અને છેલ્લે एक और कलर नो कलर. कलर करने का ही नहीं, उसमें वैल्यू डिफाइन नहीं है और उसमें ये टॉलरेंस डिफाइंड है +-20%. अब ये टॉलरेंस कहाँ पे दिखेगा, फोर्थ बैंड में. तो फोर्थ बैंड में इधर गोल्ड सिल्वर और नो कलर ही होगा. नो कलर मतलब फोर्थ बैंड बना ही नहीं है. इफ नो फोर्थ बैंड इज देयर, ओनली 3 बैंड्स आर, तो फोर्थ बैंड हैज नो कलर, सो इट इज +-20% टॉलरेंस वैल्यू. अच्छा, उसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर का वैल्यू -1 -2 वो फर्स्ट या सेकंड डिजिट में हो नहीं सकता. रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, रिमेंबर वेल, रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. इससे नेगेटिव नंबर तो वहां आने नहीं है, तो कहाँ आएंगे ये, इन द पावर. सो गोल्ड एंड सिल्वर कैन कम इन पावर थर्ड बैंड में हो सकता है. तो गोल्ड एंड सिल्वर थर्ड एंड फोर्थ बैंड में होगा, फर्स्ट सेकंड बैंड में कभी नहीं होगा. ओके, बाकी ये वैल्यूज है. कैसे ढूंढा जाए, चलो एक सैंपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं. इसमें सपोज हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें 4 बैंड दिए हुए, 4 बैंड दिए हुए. पहला सपोज फर्स्ट बैंड इज रेड, सेकंड बैंड इज सपोज ब्लू, थर्ड बैंड इज सपोज ग्रीन एंड फोर्थ बैंड इज सपोज सिल्वर. ये दिया हुआ है आपको. तो क्या होगा, अब इसको देखिए वैल्यू कैसे आएगा. तो रेड चेक करो, वैल्यू क्या आता है रेड का, 2. अकॉर्डिंग टू द टेबल रेड इज 2. ब्लू अकॉर्डिंग टू टेबल ब्लू इज 6, तो ये 6 हो गया. ग्रीन हैज वैल्यू 5. सिल्वर इन द फोर्थ बैंड, तो फोर्थ बैंड इन टॉलरेंस +-10%.
नाउ व्हाट दिस वैल्यू विल बी, दिस वैल्यू विल पहले दो कलर शो, पहले दो बैंड शोज द 2 डिजिट नंबर 26, थर्ड बैंड गोज टू पावर ऑफ 10 10 रेज टू 5, पहले दो ने मिला के 2 डिजिट नंबर दिया, फिर थर्ड ने 10 रेज टू पावर 5 प्लस माइनस 10%. This much ohm is the resistance of this color code. Clear? तो this is how we determine the value. क्या ये कलर कोड हमारे बोर्ड के लिए चलता है, स्टेट बोर्ड के लिए या सेंट्रल बोर्ड के लिए? नहीं, इट इज अ यूनिवर्सल कलर कोड यूज्ड इन इंडस्ट्री एज वेल एज एजुकेशन एंड रिसर्च. एवरीवेयर द सेम कलर कोड इज यूज्ड. तो आपको भी ये कलर कोड याद रखना है इफ यू आर गोइंग टू इंजीनियरिंग फील्ड एंड यू विल बी डेवलपिंग अ करियर इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस कलर कोड. इट इज वेरी मच कंपल्सरी. तुम बोलोगे कैसे याद रखना है, तो उसके लिए ये कलर कोड को याद रखने के लिए इनके इनिशियल्स पकड़ते हैं. ध्यान से सुनना, इनिशियल्स पकड़ रहे हैं. BB रॉय, GB गो बॉम्बे, वाया गेटवे VGW, टू ब्रिंग गोल्ड सिल्वर और नथिंग, टू ब्रिंग गोल्ड सिल्वर और नथिंग. हमने इसको कुछ ऐसे बनाया हुआ है. BB रॉय एक भूतिया नाम है, कोई स्मगलर का डॉन अपने आदमी को मैसेज दे रहा है. BB रॉय भूतिया नाम है ऑब्वियसली. गो बॉम्बे, बॉम्बे जाओ. क्या करने के लिए, कैसे जाना है? वाया गेटवे, दरिया से होके आना है. गेटवे एट द सी कोस्ट, सो दरिया से होके आना है. क्या करना है? टू ब्रिंग गोल्ड सिल्वर. मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वापस भागा, नाम में कोई वादा नहीं है, तेरी जरूरत है. गोल्ड सिल्वर नहीं मिले तो चलेगा. और नथिंग, बराबर. BB रॉय गो बॉम्बे वाया गेटवे टू ब्रिंग गोल्ड सिल्वर और नथिंग. अब वैल्यूज अगर पता लगानी हो तो लाइन में ये सब जीरो से चालू करते हैं. पर सर इसमें तो अभी तो चलो आज याद रहेगा. व्हाट अबाउट 3 B's प्रेजेंट? कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा ब्लू है, कैसे पता लगेगा? 3G प्रेजेंट 1 2 और 3, कैसे पता लगेगा कौन सा ग्रीन है, कौन सा ग्रे है, कौन सा गोल्ड है? तो उसके लिए ध्यान से देखो, ये कुछ हमारा जाना पहचाना सेटिंग है. What it? It's Vibgyor in reverse form. Vibgyor is the rainbow colors: violet, blue, grey, green, yellow, orange, red. ये Vibgyor violet, ये रेनबो का कलर है. इससे पंगा तो सॉल्व हो गया. एक B का ब्लू और दूसरे एक G का ग्रीन. फिर Vibgyor बराबर. लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो कलर का डार्कनेस बढ़ेगा. ब्राउन एंड ब्लैक कलर का डार्कनेस बढ़ता है. राइट साइड पे जाओगे तो कलर का व्हाइटनेस बढ़ता है. ग्रे एंड व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट. सो मसला सॉल्व हो गया. ब्लैक ब्राउन. Vibgyor से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो डार्कनेस ब्लैकनेस बढ़ेगा. राइट साइड पे जाओगे तो व्हाइटनेस बढ़ेगा. तो सर इसका क्या करें? सोना चांदी. कभी हम चांदी सोना तो बोलते नहीं है. और कॉमन यूजेस गोल्ड सिल्वर, नॉट सिल्वर गोल्ड. चांदी सोना कभी नहीं बोलते. जैसे राधे श्याम सीता राम, कभी राम सीता बोले, कभी श्याम राधे बोले नहीं. वी ऑलवेज से राधे श्याम, गोल्ड सिल्वर, सोना चांदी. तो वैसे याद आ जाता है आराम से. नंबर्स में देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2. नंबर में -1 -2. एंड टॉलरेंस में 5%, 10%, 20%. डबल हो रहा है. 5 का डबल 10, 10 का डबल 20. सिंपल टू रिमेंबर दिस. ओके, तो ये हो गया कलर कोड. यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द इनिशियल्स. आप अगर देखेंगे तो नोट्स में मैंने इनिशियल्स को डार्क से बताया हुआ है, बराबर है. और ये लिखना हो तो ये साइड में कलर कोड लिख डालिए आपके नॉलेज के लिए. ओके, सो दैट्स व्हाट इज कार्बन रजिस्टर. हाउ टू नो इट्स वैल्यू यूजिंग कलर कोड. द कलर कोड इज आल्सो गिवन टू यू. we'll take one sum based on this one. So returning back to the color code, the color code is B Roy go Bombay via gateway to bring gold silver or nothing. The value connected 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2. and tolerance में 5%, 10%, 5%, 10% and 20%. Okay, now let's take an example based on this. Suppose there is a resistor, carbon resistor, 3 bands nearby and a fourth a little bit far away. चौथा क्यों थोड़ा दूर रखा हुआ है? द रीजन इज ये 4 बैंड बनाते बनाते साइज खत्म हो जाती है. इट्स अ वेरी स्मॉल इन साइज. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए 1 2 3 और चौथा बनाते तब तक दूसरा एंड आ जाता है. तो हाउ टू डिफरेंशिएट, कि यहाँ से शुरू करना है कि यहाँ से शुरू करना है?
इससे एक को थोड़ा दूर रखा है तो फोर्थ बैंड होगा, स्टार्ट दूसरी तरफ से करना है। सो दैट्स द रीजन व्हाई फोर्थ बैंड इज केप्ट लिटिल बिट अवे, ताकि पता लगे यहाँ से शुरू करना पढ़ना, यूं शुरू करना है कि यूं शुरू करना है, दैट वो पता लगे उसके लिए। ओके, नाउ सपोज इन आवर एग्जांपल द कलर्स आर गिवन एज, colors given are first one is suppose brown, second one is suppose blue, third one is suppose orange and fourth one is suppose silver। ये चार कलर दिए उनको, ब्राउन, ब्लू, ऑरेंज एंड सिल्वर। चलो देखते हैं वैल्यू क्या बनता है। ब्राउन तो ब्लैक एंड ब्राउन 1, ब्लू 6, ऑरेंज 3 and silver fourth band is tolerance, so plus minus 10%। okay, so this value will be 16 into 10 raised to power 3, 16 into 10 raised to power 3 plus minus 10%। यानी कि देखा जाए तो क्या हुआ, 16 के ओम हो गया, 16 किलो प्लस माइनस 10%। अब 16,000 प्लस माइनस 10%, ना 10% कितना होगा 16,000 का, तो 16,000 का 10% विल बी 1600, एक मिनट कम हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 16,000 माइनस 1600 टू 16,000 प्लस 1600, यानी हो जाएगा यहाँ पे 14,600 सॉरी 400 14400 से लेके 17600 ओम। यानी दिस पर्टिकुलर कलर कोड वाला रेजिस्टेंस विल हैव इट्स वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 14,400 टू 17,600 ओम, बराबर है। यानी कि इफ यू आर गिवन अ कलर कोड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ये वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस हो गया, एंड इवन यू कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ इट्स वेरिएशन। हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है ऑब्टेन द वैल्यू या ऑब्टेन द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल ये बन जाता है, तीसरा उल्टा चलता है, वैल्यू दी आपको कलर कोड ऑब्टेन करना है या फिर रेंज दी आपको कलर कोड ऑब्टेन करना है, दैट आल्सो कैन बी आस्क्ड। चलो चेक करते हैं रेंज से वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो एक समझ लेते हैं उल्टा वाला। यू आर गिवन दैट कलर a variable resistor sorry a carbon resistor has its value ranging from 4750 ohm to 5250 ohm, इतना वेरी कर रहा है। फाइंड द कलर, ऑब्टेन द कलर कोड। तो अब देखते हैं क्या करना है इसमें। पहला स्टेप, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द रेंज का एवरेज ले लो, तो 4750 प्लस 5250 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल कम आउट टू बी 5000, बराबर। ये एवरेज वैल्यू है, यानी इन दोनों का मिडिल वैल्यू आया। सो इसमें 5000 ओम। अब रेंज गैप देखो, इस बाजू 250, इस बाजू भी 250, तो दिस प्लस माइनस 250, इन दोनों का एवरेज निकाला 5000 है। 5000 से कितना दूर है 250, ये कितना दूर है 2, ये प्लस 250, ये माइनस 250। एवरेज लेने का रीजन ये बीच का वैल्यू, इन दोनों साइड डिस्टेंस इक्वल रहेगा, प्लस माइनस 250। नाउ 250 का वैल्यू 5000 के सामने कितना हुआ, तो 250 परसेंटेज में देखे तो और 5000 परसेंटेज निकालते हैं, तो दिस विल बी 5। सो 5000 प्लस माइनस 5% हुआ। अब इसको डबल डिजिट इंटू 10 रेज़ टू पावर में लेना है, तो डबल डिजिट 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 मिनटी प्लस माइनस 5%। देखो रेंज था, एवरेज लिया, उसमें से डेविएशन ले लिया प्लस माइनस करके, उसको परसेंटेज में निकाल लिया। नाउ द कलर कोड, पहला 5 ग्रीन, दूसरा 0 ब्लैक, फिर 10 रेज़ टू पावर 2 है, 2 मतलब रेड, एंड 5% इज गोल्ड। ये हो गया इस कार्बन रजिस्टर का कलर कोड। वे रेंज दिया, कलर कोड फाइंड करने का, वैल्यू दिया है तो कलर कोड फाइंड करने का, दोनों मेथड आ गए। इज इट क्लियर? तो ये 1, 2, 3 और 4 टाइप के सम्स हो गए इसमें से।